یہ بیس کو ہلکا رکھو، زیادہ بھاری نہیں، ماسٹر بڑھا دو۔ وہاں لگتا ہے آپ سامنے آ جائیں اچھا ہوگا، ہم لوگ آواز نہیں کر رہے، ساؤنڈ ادھر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے، غوث اعظم بمنے بسر و سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد، ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم اما اے شہ جیلا مدد۔ آپ حضرات بابا سے بلند بولے آمین۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب غوث اعظم کے سچے وفادار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے وفادار نہیں ہیں؟ ہنسنا مت، جہاں کچھ ہنسنے کی بات آئے مسکرا دیجیے، آواز مت ہنسیے، کہ محفل پاک ہے، اس کے ادب کیجیے۔ غوث اعظم کی محفل کی ادب بڑی چیز ہے۔ محفل غوث اعظم کی محفل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سجائی ہوئی محفل کے بارے میں اگر آپ کو صحیح جانکاری ہو جائے نا، قسم خدا کی ہر کام آپ چھوڑ دیں گی، اس محفل ہی میں بیٹھے رہیں گے۔ تو آپ سچے قادری ہیں، ہے نا؟ سب سچے قادری ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے ہاں ہم سچے قادری ہیں۔ میرے بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں، اگر آپ قادری ہیں، غوث پاک کے نام سے تو ٹوپی تو پہن لیتے یا رومال لگا لیتے، ہے نا؟ یہ ہمارے شاعر اہل سنت جناب طاہر رضا صاحب رام پوری، اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے، اور ہمارے بڑے بھائی حسن رضا صاحب کی بھی آواز کو سلامت رکھے، ان کی زبان پہ مرتے دم تک نعت نبی کی صدائیں جاری رہے۔ آمین تو بول دو، آپ کے بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، یہ اگر ان کی آواز سلامت رہے گی تب نہ آپ کے پروگرام میں آئیں گے، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کے حق میں آمین کہو گے، یہ آپ کو جہنم کے نہیں جنت تک لے جائیں گے۔ نعت نبی سنا کے انہی کے نعت آپ بھی سن کے اگر زندگی گزارو گے، کبھی تو قسمت بیدار ہوگی، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی۔ نعت نبی کا صدقہ بے پناہ ہے، اگر عقیدت ہو، اگر عقیدت نہیں ہو تو کچھ نہیں۔ جیسے کچھ لوگ ابھی بیٹھے تھے بس سننے آئے تھے، وہ سنے چلے گئے، اور ان کو پوچھو کہ کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے اس مطلب نہیں، بس آواز انہیں ترنم سمجھنا ہے۔ طاہر رضا رام پوری صاحب کتنے ترنم میں پڑھتے ہیں، عظمت صاحب کتنے ترنم میں پڑھتے ہیں، یہی کچھ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلسے کو عشق کی انداز میں ہی سننے آتے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ سلامت رکھے۔ جلسہ آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مگر ہمارے مسلمانوں کی حالات آئے دن بگڑتی جا رہی ہے۔ جتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ غوث اعظم کے نام پر جلسہ ہے نا، جتنے لوگ چلے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ غوث اعظم کی امی کا نام کیا ہے؟ ان کے نام پہ سالوں بھر لنگر کھاتے ہو، کئی سال تک لنگر کھا رہے ہو۔ غوث اعظم کے ابو کے نام کیا ہے؟ غوث اعظم کا گھر کہاں ہے؟ غوث اعظم کے مزار کہاں ہے؟ بعض لوگوں تو غوث اعظم جانتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، اور غوث کی محفل سے اٹھنے کا ہو تو پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ غوث اعظم کی محفل میں آپ یہاں جتنے ہیں ان سے زیادہ غوث اعظم جس محفل میں تقریر کرتے وہاں اللہ کے ولیوں کی حاضر ہوا کرتی تھی۔ آپ کیا ہیں، یہ کوئی کثرت ہے؟ غوث اعظم کی محفل میں اللہ والوں کی جماعت کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ ہمیں بڑے پیر کی محفل میں حاضری مل رہی ہے۔ اگر غوث اعظم کے سچے دیوانے ہو تو تھوڑی دیر بیٹھو، پھر اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے پھر یہ دو فنکار اپنی آواز کی دھن میں نعت نبی سنائیں گے، پھر ان کے بعد ایک سید صاحب کی آمد ہونے والی ہے، ان کی تقریر بھی سننی ہے، اور یہ رات پوری رات غوث اعظم کے نام پہ قربان کر دو۔ آج یہاں قربان کرو کہ میدان محشر میں غوث اعظم تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع آؤ کو سننے اور سنانے کا ماحول بنانے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا امام المرسلین شفیع المذنبین مراد المشتاقین جان عالمین طٰہٰ و یاسین سیاح لامکہ مالک انسجا سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رسول اعظم رحمر اعظم نیر اعظم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ جھوم کے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری آنکھ کی روشنائی یہ ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے کے اعتبار سے بہت زبان خاموش کیوں ہے؟ درود پڑھا کرو، قسم خدا کی درود پڑھنے میں کتنی برکتیں ہیں، آپ اپنے علماء سے سنیں گے، قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس ایک روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہی حدیث مشکات شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 10 نیکیاں۔ اور یہیں تک بات نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے 10 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جو آپ آئے ہیں، آپ یہاں جتنے دیر بیٹھے ہیں، جب سے جلسہ شروع ہے اس وقت سے لے کر اب تک آپ بتاؤ اس اسٹیج سے کوئی ایسا کام ہوا جس سے آپ گنہگار ہوئے؟ کوئی ایسا کام آپ نے اب تک دیکھا؟ نہ ہمارے شعراء حضرات کی زبان سے کچھ سنے، نہ ہمارے نقیب، نہ ہمارے قاری صاحب، نہ جس میں علماء آئے گئے کسی نے کچھ کہا جس میں آپ گناہوں میں ملوث ہو گئے، بلکہ جب تک آپ بیٹھے رہے ثواب ہی ثواب کماتے رہے، اور جب تک رہیں گے انشاءاللہ ثواب ہی ثواب کماتے رہیں گے۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ درود پڑھو، آپ ارادہ کر کے گھر سے چلے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے، نعت پڑھیں گے، نعت سنیں گے اور ثواب کمائیں گے، تو درود پڑھنا یہ بھی نعت ہے بھائی، درود پڑھنا یہ بھی نعت ہے، اور آپ درود میں خاموش کیوں رہتے ہیں؟ پورا مجمع پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نائب خیر الورا ہیں حضرت غوث الورا، نائب خیر الورا ہیں حضرت غوث الورا،
مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا، نائب خیر الورا ہے حضرت غوث الورا، مظہر شیر خدا ہے حضرت غوث الورا، مانگ لو صدقہ رسول پاک کا اے مومنو، مانگ لو صدقہ رسول پاک کا اے مومنو، آشیانہ ہے آسرا ہے حضرت غوث الورا۔ حضرت غوث الورا کے جتنے چہیتے ہیں سب بولیں یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ ابھی ہمارے شاعر صاحب نے کہا تھا نا کہ مائک اچھا نہیں ہے مگر آپ تو ساتھ دیں، یقیناً مائک ہے جو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور یہ مہینہ پورے مہینہ بھر ہم لوگوں کو بولنا رہتا ہے، حضرت لوگوں تو سالوں بھر پڑھنا رہتا ہے، اور پورے مہینے میں آج ہی اگر مائک میں آواز خراب ہو جائے تو پھر کل کیا بولنا ہے۔ ابھی آپ کی دعا سے میں کانتھی میں تقریر کر کے آ رہا ہوں، وہاں جلسہ کر کے میں یہاں آیا، اور یہاں آ کے سیدھے یہاں ایک گلاس پانی پیا، یہاں آ گیا، اب یہاں سے تقریر کر کے پھر جانا ہے۔ اب یہ غوث اعظم کا کرم ہے کہ ہم لوگ بول رہے ہیں۔ مائک والا بھائی ذرا سا ماسٹر بڑھا دو، غوث اعظم کا کرم ہوگا تم بھی ایماندار ہو جاؤ گی، اگر بے ایمان ہو، اگر ایماندار ہو تو تمہارے ایمان میں اور تازگی آ جائے گی۔ غوث اعظم کے توسل سے آپ بیٹھے ہیں، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد والی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے تحت آپ ذرا میری طرف توجہ فرمائے، میں ذرا آپ کو زیادہ جھول جھال میں نہیں ڈالوں گا، جہاں سمجھ میں آئے سبحان اللہ بولے، جہاں سمجھ میں آئے نعرہ لگائے، ورنہ چپ کے میری تقریر سنے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی محفل پاک میں بیٹھتا ہے، وہاں پر محفل پاک میں بیٹھنے کے بعد وہاں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ آپ سبحان اللہ بولو گے، یہاں آپ بولو گے، مگر آپ کے نامہ اعمال کے نام پہ ایک جنت میں درخت لگا دیا جائے گا، یہ سب آپ جانتے ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حضرات محترم ذرا بتائیں یہ صحیح، آج جلسے جلوس کتنے ہو رہے ہیں، جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ اسی علاقے میں اسی مہینے میں نہ جانے ایک اور جلسہ ہو گیا ہوگا، آپ کا جلسوں سے کتنا پالا پڑتا ہے، کہاں کہاں آپ جلسے سنتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنی تقریریں آپ نے سن لیا ہے، کتنی نعتیں آپ نے سن لیا ہے، ایسے آپ بتائیں کتنے جلسے آپ سن رہے ہیں۔ جلسے سننے کے بعد، جلسے ختم ہونے کے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، جا کے سو جاتا ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد بازار میں گیا، بازار میں جانے کے بعد اگر یہاں لنگر کھاتا ہے تو بازار میں سب سے پہلا چرچا کیا ہے؟ لنگر کے بارے میں چرچا ہے، لنگر میں یہ ایسا ہے گوشت کم ہے، لنگر میں یہ ایسا ہے کہ چاول کم ہے، لنگر میں ایسا ہے کہ مسالہ کم ہے، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے۔ مگر میرے دوستو بتاؤ، ایمانداری سے بتانا کہ جلسے میں جانے کے بعد جتنے خطیب سے آپ تقریر سنتے ہو، خطیب آتے ہیں، نعتیہ شاعری ہوتی ہے، آپ کو شاعر اہل سنت جناب طاہر رضا رام پوری نے سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت سنایا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے آئیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن ہمیں ہنسائیں گے مگر حضور کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ہمیں مسکرائیں گے مگر حضور ہمارے لیے روئیں گے، ہمارے لیے روئیں گے، مگر ہم نبی کے جلسے میں کیا کرتے ہیں؟ نبی کے جلسے میں آنے کے بعد، نبی کے جلسے میں آتے ہیں، وہ علماء کو سننے آتے ہیں، یہی علماء آپ سے بارہا کہا کرتے ہیں نبی کی تعریف سنو، نبی کی سیرت پہ چلو، نبی کی سیرت میں ہمیشہ اختیار کرو، ان کی اپنی زندگی کو سنت رسول کے دائرے میں ڈھال دو۔ مگر میرے دوستو اسی جلسے کے بعد کل جا کے آپ بھی تذکرہ کریں گے جناب طاہر صاحب کا ترنم اچھا تھا، عظمت صاحب کی نعتیں اچھی تھی، وہ مقرر آئے تھے اچھی خطب کر رہے تھے، ان کی تقریر اچھی ہو رہی تھی، بڑی آواز میں چلا کے تقریر کر رہے تھے، مگر تقریر کرنے والوں نے کیا تقریر کی ہے؟ کسی نے کہا ہے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، کسی نے کہا ہے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، کسی نے کہا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کسی نے کہا ہے غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے، مگر ساری باتوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یقین جانو جتنے جلسے سنیوں میں ہوتے ہیں
पूरे जलसा सुनने के बाद वो भी कहता अम्मा पूछ क्या पूछना है, वजू का तरीका बताऊंगा, नमाज का तरीका बताऊंगा, गुस्ल का तरीका बताऊंगा, नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा। मगर मेरे दोस्तों यहाँ जितने बैठे हैं सब ईमानदारी से बताओ, हर दिन आप नहाते हो, गुस्ल का फर्ज याद नहीं है, गुस्ल के सुन्नत याद नहीं है, नमाज के फराइज याद नहीं है, गौसे आजम की महफिल में आए हो, गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, जरा अब्दुल कादिर की जिंदगी का मुलाहिजा करो। जिस अब्दुल कादिर ने एक पैर में खड़े होकर पूरी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं, यहाँ जितने गुलाम हैं कितने कुरान पढ़ने जानते हैं, कितने कुरान घर में रखे हैं, जरा बताओ तो सही। आप जरा ईमानदारी से बताओ। हमारा मामला ऐसा है, हम दुकान में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, दिन भर अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? बताओ पेपर पढ़ते हो कि नहीं? आपके बंगले के एतबार से आनंदो पढ़ते हो, बहादुर प्रतिदिन पढ़ते हो, कई कई बंगले की अखबार पढ़ते हो, कोई इंग्लिश अखबार पढ़ता है, दुकान में आए दिन अखबार वाला आता है, अखबार फेंका चला गया, पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। मैंने एक दुकान वाले से पूछा, दुकान वाला भाई जरा बता तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ हम मुसलमान है। तू बता तू घर से कैसे चला है? उसने कहा मैं चला हूँ, सुबह उठने के बाद नहाया हूँ, नहा के फ्रेश होके नाश्ता किया हूँ, नाश्ता करके सीधे दुकान आया हूँ, दुकान खोला हूँ, अगरबत्ती लगाया हूँ और सीधे अखबार लेके बैठ गया हूँ। मैंने कहा तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ हाँ मौलाना हम मुसलमान है। मैंने फिर पूछा बता तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ हम मुसलमान है। मैंने पूछा बता तू जो अपने घर से उठा, सुबह में उठा, उठने के बाद नहाया, नहाने के बाद तू आया दुकान आया, दुकान को खोला, अगरबत्ती लगा दिया, अखबार पढ़ने लगा, जरा बता किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या नबी यही बताते हैं कि सुबह में उठ के सीधे दुकान चला जा? क्या नबी ने यही फरमाया है कि दुकान खोलने के बाद सीधे अखबार पढ़ ले? आका फरमाते हैं जिसने सुबह में उठ के 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया और जो दुनिया में जितनी चीजें हैं इससे भी बेहतर सुबह की 2 रकात नमाज पढ़ने पे है। इससे भी बेहतर 2 रकात नमाज पढ़ने पे है। कितनी रकात? 2 रकात नमाज पढ़ने पे हैं। बताओ मुसलमानों आज जलसे में है, ऐसे ही कितने जलसे होते हैं? जलसे सुनने के बाद सब जाओगे सो जाओगे, सुबह में उठोगे सब ऐसे ही करोगे। अखबार उसने पढ़ा, मैंने कहा जरा भाई बता तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ मुसलमान है। मैंने कहा जरा बता तेरे वालिद साहब ने तेरे साथ कैसा सुलूक किया है? उसने कहा मेरे वालिद साहब ने क्या किया है? मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद मेरी पैदाइश के बाद मेरे अब्बा अम्मा ने स्कूल में दाखिला कराया, मैट्रिक तक पढ़ा, +2 तक पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे नौकरी ना लगी, मैं दुकान खोल के बैठ गया। मैंने कहा जरा बता तेरे वालिदैन ने क्या तुझे मदरसा का रास्ता नहीं दिखाया? उसने कहा नहीं 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 दिखाया। अब बताओ मेरे दोस्तों, वो कह रहा है मैं अब स्कूल में पढ़ने वाला हूँ तो अखबार नहीं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, अखबार नहीं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा। एक दुकान वाला हर दिन बिना नागा अखबार को खत्म कर रहा है। कसम खुदा की मुसलमानों अफसोस सब अफसोस, अल्लाह ने जो कुरान हमें दिया है, जो कुरान हमें दिया है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, ईमानदारी से बताओ तुम महीना भर कितना कुरान पढ़ते हो, कितने पृष्ठे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो? मगर आओ अब्दुल कादिर की बारगाह में पूछो अब्दुल कादिर से, ऐ गौसे आज़म तुम कितना कुरान पढ़े हो? अब्दुल कादिर कहते हैं मुझसे पूछता है अम्मा जिस दिन हम पैदा हुए हैं पूरे 18 पारा हाफिज बन के पैदा हुए, पूरे 18 पारा हाफिज बन के पैदा हुए हैं। गौसे आज़म ने क्या दर्श दिया है? ये माँ बाप का करम है। सुभान अल्लाह, माँ बाप का करम है। यहाँ जितने हमारे माँ हैं, हमारे बाप बनने वाले जितने भाई हैं, सबों से मैं कहना चाहूंगा गौसे आज़म की अम्मी ने कुरान की तिलावत की, बच्चा 18 पारा हाफिज बन के आ रहा है। आज उस दुकानदार ने क्या कहा? मेरे बाप ने मदरसा का रास्ता नहीं दिखाया, कुरान हाथ में नहीं दिया, कुरान अगर देता मैं अखबार नहीं पढ़ता, कुरान अगर देता हर दिन सुबह में उठ के कुरान की तिलावत करके सीधे मैं दुकान की तरफ आता। मगर आओ मैं आपको बता दूं, आका
आप फरमाते हैं कुरान मुकद्दस के बारे में आपने सुना है, एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकी, सुभान अल्लाह, एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकी। मगर ऐ मेरे दोस्तों, आज उसी कुरान के दामन को छोड़ने की वजह से हमारे घरों में कुरान कहाँ है? सबके घर में कुरान है कि नहीं बताओ? हाथ उठा के बताओ, सबके घर में कुरान है ना? किसके घर में कुरान है? हाथ उठा के बताए। सबके घर में कुरान है, मगर पढ़ने वाले कितने? हाथ उठा के बताएं मुझे। पढ़ने वाले बस नहीं की मंजिल पे हैं, पढ़ने वाले लातादाद हैं, पढ़ने वाले यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें से ऐसे हैं जिन्हें गिनती में शुमार किया जाता है। हाथ उठाने पे शर्म आती है इसलिए कि हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। वो कुरान जो हर तरह का मिसाल आता है, वो कुरान जिसमें हर चीज पाई जाती है, उसी कुरान में देखो हमारे मौत का जिक्र है, उसी कुरान में देखो हमारे चलने का जिक्र है, उसी कुरान में देखो हमारे बैठने का जिक्र है, उसी कुरान में देखो हमारे उठने का जिक्र है, उसी कुरान में देखो हम क्या खाएंगे कुरान बताएगा, हम क्या पिएंगे कुरान बताएगा, हम कैसे सोएंगे कुरान बताएगा, हम कैसे चलेंगे कुरान बताएगा, हम नमाज क्या पढ़ेंगे कुरान बताएगा, हमारी मौत कैसे होगी कुरान बताएगा, हमारी कब्र कैसे होगी कुरान बताएगा, मैदान महशर में क्या हाल होगा कुरान बताएगा, रब की बारगाह में कैसे खड़े हो कुरान बताएगा, क्या क्या सवाल मैदान महशर में हो कुरान बताएगा, हमारे माल के बारे में क्या पूछा जाए वो कुरान बताएगा, हमारी औलाद के बारे में क्या पूछा जाए वो कुरान बताएगा। हर चीज तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का जिक्र कुरान में है। मगर जरा बताओ हम क्या करते हैं? हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम नेता का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, बड़े लोगों का सहारा लेते हैं, हर चीज का सहारा लेते हैं। मगर अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें बड़े पीर जैसा वली दिया है। अगर किसी को कोई मुसीबत आए, कुरान पढ़ते जाओ और अपने जबान से या गौस का नारा लगाते जाओ। तुम यहाँ या गौस कहोगे, बगदाद वाले आका तेरे पर करम करते नजर आए, बगदाद वाले आका तुझ पे करम करते नजर आएंगे। यकीन जानना है। आओ मैं आपको बता दूं, हुजूर बड़े पीर के चाहने वालों, हुजूर बड़े पीर के प्रोग्राम में बैठने वालों, इस महफिल पाक में बैठे हो, आप जरा बताओ हमें कुरान पढ़ना आता नहीं है, मगर बड़े पीर बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़े पीर बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं। आप में से जितने लोग हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप यहाँ वादा करें कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठा के बोले कि इंशाअल्लाह। सब उठाओ, सब उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। वरना मेरे दोस्तों देखो, अनकरीब वो जमाना आएगा, मदारिसें खत्म हो रही है। इंशाअल्लाह हमें तो उम्मीद है कभी मदारिसें खत्म नहीं होंगी, मगर वो जमाना ऐसा आ रहा है, हर आदमी का जहन बनता जा रहा है हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। हर आदमी का जहन बनता जा रहा है हम अपने बच्चे को कॉलेज में पढ़ाएं। हर आदमी का जहन बनता जा रहा है हम अपने बच्चे को मैट्रिक की तरफ पढ़ाएं। मगर मेरे दोस्तों, ऐसा ही पढ़ाते रहोगे, याद रखना कुरान के बारे में अगर तुम्हें बताया जाए, कुरान के बारे में बताया जाए, आज हम पे इतनी मुसीबतें आ रही है, हम पे इतनी मुसीबतें आ रही है, उसकी वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना बुला दिया है। हमारे यहाँ मस्जिदें वीरान है। आपको मालूम है कि वो जमाना ऐसा भी है जिस जमाने में हर मुल्क में मुसलमानों की आबादियां थी, मुसलमानों की मस्जिदें आबाद थी, मुसलमान कुरान पढ़ा करते थे। मगर मुसलमानों की हुकूमतें खत्म होती गई है, मुसलमानों की मस्जिदें उनसे हाथ से छीनी जा रही है, उनके मदरसे उनके हाथ से छीने जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? मुसलमान तादाद में है, हर तादाद में मुसलमान है, मगर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में जमहूरियत के एतबार से आप देखें, यहाँ पर 30 से 35 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, मगर आए दिन इनके मदारिस छीने जा रहे हैं, इनकी मस्जिदें छीनी जा रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ हम है कि हमने कुरान पढ़ना भुला दिया है, हमने बच्चे को कुरान नहीं दिया है, हमने मस्जिद की तरफ अपना रास्ता नहीं इख्तियार किया है। यही वजह है कि आज गौसे आजम का करम भी हम पे नहीं हो रहा है। आज बगदाद वाले आका भी नजरे इनायत तो हमसे फिर लिए हैं। इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, आए दिन गौस का नाम लिया जा रहा है, मगर आए दिन ये हुकूमत हम पे जुल्म ढा रही है। कौन कहता है कि गौसे आजम का करम नहीं होता है? हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक मर्तबा कहा था, वो
बिहार के रहने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे, उनके पास किताबें पढ़ रहे थे, हदीस की किताब पढ़ाते पढ़ाते मेरे उस्ताद ने कहा कि मैं बिहार में सफर कर रहा था। सफर करते करते उस दौर में बिहार के रास्ते ऐसे थे कि बड़े खतरनाक रास्ते थे, रास्तों में गुंडागर्दी हुआ करती थी। वो जमाना जिस जमाने में लाइटिंग नहीं थी, उस जमाने की बात उन्होंने कहा कि मैं रात को सफर कर रहा था, बस रात के सन्नाटे में तारीकी रास्ते में जा रही थी, अचानक बस को सारे गुंडों ने हाईजैक कर लिया, गुंडों ने घेर लिया। मेरे उस्ताद ने कहा जैसे ही गुंडों ने घेर लिया, गुंडे उठे, बंदूक दिखाते रहे, बंदूक दिखा के सबों को कहा कि सब अपने अपने मालो दौलत निकालो, सब निकालो। सब होने निकाला। मेरे उस्ताद ने कहा कि सुनो सुनो, उस वक्त मैंने कहा कि या अल्लाह, मैं कई दिनों तक मदरसे में नौकरी करने के बाद 4 से 5 हजार महीना लेके अपने घर में चला हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, यही चंद रुपये अगर घर ना पहुंचा तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस उस्ताद साहब ने अपने उस पैसे और दौलत की फिक्र करते हुए उन्होंने सीधे उसी गाड़ी में बैठ के, गुंडा आगे खड़ा है, हाथ में गोली है, वहां पर मौत सर के अंदर मंडरा रही है, ऐसे आलम में उस उस्ताद ने क्या किया, अपनी दौलत को इधर उधर न छुपाया, बल्कि अपने दिल में, अपनी जबान में या गौस का नारा लगा दिया, या गौस अल मदद कहा। जैसे ही या गौस अल मदद कहा, कसम खुदा की उस्ताद बताते हैं जितने गुंडे वहां थे इधर उधर सब ढूंढ रहे हैं, मगर उस मौलाना से कोई नहीं पूछ रहा है। अब आप पूछेगा कैसे, इसलिए कि उसने किसी दुनियादार को नहीं, महबूबे परवरदिगार को आवाज दी है, जिसे दुनिया बड़े पीर दस्तगीर कहा करती है, जिसे दुनिया बड़े पीर कहा करती है। आज भी अगर सच्चे दिल से आप गौसे आजम को पुकारोगे तो गौसे आजम आपकी मदद फरमाएंगे, मगर हम कैसे पुकारेंगे, हमारी गौस कैसे मदद करेंगे। अभी हजरत ने पढ़ा था, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते आएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मैदाने महशर का अंजाम क्या होगा मालूम है, आका का मामला क्या होगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है और दूसरी किताब में ये हदीस है। आका के बारे में ऐसा है कि जब सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जितने उम्मती हैं अपनी सिफारिश के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, जहन्नम से आजादी के लिए हजरत आदम के पास जाएंगे। आदम से लेके ईसा तक जितने नबी हैं हर नबी के पास जाएंगे, मेरी मदद की जाए, मेरी मदद की जाए, मेरी मदद की जाए। मगर सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मगर सब कहने के बाद हुजूर के लब पे अना लहा होगा, हुजूर कहेंगे मैं मदद करूंगा, हुजूर कहेंगे मैं सिफारिश करूंगा, हुजूर कहेंगे मैं तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश करवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, किताबों में बात आती है हुजूर का मामला ऐसा होगा कि जैसे कोई आदमी रास्ते में चले और कुछ बांटता जाए और सारे लोग उसी बांटने वाली चीज को लपक लपक के लेते रहे, ऐसे ही कयामत के दिन हुजूर का मामला होगा। हर उम्मती हुजूर की बारगाह में आने के बाद यही कहेगा हुजूर मेरी सिफारिश करे, हुजूर मेरी सिफारिश करे, हुजूर मेरी सिफारिश करे। मगर ऐ इंडिया वालों, किस्मत पे नाज करो, हम कयामत के दिन किसको अपना शफी बनाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब सारी उम्मती हुजूर की बारगाह में शफाअत के मदद के लिए जाएंगे, उस वक्त गुनहगार कादरी जो होंगे वो किसी और को नहीं, बड़े पीर को शफी लाएंगे, बड़े पीर को शफी लाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। कल कयामत के दिन भी गौस हमारे काम आएंगे, आएंगे कि नहीं बताओ। कयामत के दिन आएंगे ना हमारे, जब गौस काम आएंगे, क्या ऐसे ही गौस काम आएंगे, ऐसे ही कादरी का नाम लेने से हो जाएगा। अपने नाम के आगे कादरी लिख दो, आधार कार्ड में कादरी लिख दो, वोटर कार्ड में कादरी लिख दो, राशन कार्ड में कादरी लिख दो। क्या सच्चे कादरी होगे? सच्चे कादरी कौन बनता है? जो गौसे आजम के सही नक्शे कदम पे चलता है। सच्चा कादरी कौन बनता है? जो गौसे आजम का सच्चा वफादार बनता है। उस वफादारी का नाम क्या है? उस वफादारी का नाम ये है कि वफादार ऐसा हो कि सुन्नत में गादारी भी सुन्नत रसूल के दायरे में हो। उस वफादार का नाम है कि वो वफादार 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो। ऐसा सच्चा कादरी है जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि सुबह में उठे कुरान की तिलावत करे, रात में सोए तो मुस्तफा पे दुरूद
खुद पढ़ता पढ़ता सोए। ऐसा कादरी गौसे आजम का सच्चा वफादार है। नाम लिखने से कादरी नहीं होगा। कहते हैं हम कादरी हैं, हम कादरी हैं। बता तू कैसा कादरी है? तू तो बिरयानी खाने वाला कादरी है, तू तो पुलाव खाने वाला कादरी है, तू तो या गौस का झूठा नारा लगाने वाला कादरी है। अगर सच्चा कादरी है तो सुन, गौसे आजम की बारगाह से सच्चे कादरी को क्या मिलता है? सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा? क्या तेरा बाप मेरे यहाँ आया है? उसने कहा ये भी मुझे मालूम नहीं। क्या तेरा बाप मेरे मदरसे में पढ़ा है? उसने कहा ये भी मुझे मालूम नहीं। आखिर में गौसे आजम ने कहा क्या तेरा बाप मेरे मदरसे के करीब से गुजरा है? उसने कहा ये भी मुझे मालूम नहीं। वहां पर किताबों में बात आती है, अगर गौसे आजम फरमाते हैं अगर तेरे वालिद मेरे मदरसे के करीब से गुजर गया है तो पकड़ ले, वो भी मैदान महशर में कामयाब है, कब्र में कामयाब है, हश्र में कामयाब है, अज़ाब से महफूज है। गोया ये जुमला बता रहा है कि चहीते कादरियों अपने किस्मत पे नाज करो, तुम यहाँ सच्चे कादरी बनो, कब्र में गौसे आजम काम आ जाएंगे। सच्चे कादरी बनो, गौसे आजम काम आएंगे। सुभान अल्लाह। सच्चे कादरी बनो। आओ, गौसे आजम का मर्तबा कितना बुलंद है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मर्तबे के बारे में इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद मेरे रजा ने ऐसा जुमला कह दिया है, ऐसा जुमला कह दिया है, ऐसा शेर पढ़ दिया है। आपको मैं बता दूं, दुनिया के जितने शायर हैं, शायर जो दुनिया के हैं, आज के शायर हो, कल के शायर हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, सुन्नी हो या जो भी गैर हो, मगर जितने शायर शेर लिखते हैं उनके शेरों में कुछ रद्द बदल हो, मगर जब अहमद रजा का कलम उठता है 100% सच उठता है। सुभान अल्लाह। 100% सच उठता है। नहीं चाहते हो? बोलो या आला हजरत। पूरा मतलब बोले या आला हजरत। मसलके आला हजरत बोलो जिंदाबाद। मसलके आला हजरत। आज के दौर में मसलके आला हजरत के दायरे में रहो, कसम खुदा की कामयाब हो जाओगे। इस मसलक से हटोगे कामयाबी में नहीं मिलेगी। मगर आला हजरत ने खुद फरमाया है, गौस का मर्तबा टटोलने वालों, गौस के मर्तबे को जानकारी करने वालों, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों को कहां तक नापोगे? गौसे आजम अभी पैदा नहीं हो रहे हैं कि उनके पैदाइश से कई सौ साल पहले हजरत जुनैद बगदादी ने जब पढ़ा, हजरत जुनैद बगदादी ने जब आलम मुराकबा में देखा कि एक ईरान और जीलान की सरजमी पे एक बच्चा आएगा जो वलियों का ताजदार होगा, वो कहेगा कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पे है। हजरत जुनैद बगदादी ने उनकी आमद से कबल वहीं पे गर्दन झुका दी और अर्ज करने लगे, या अब्दुल कादिर तेरा कदम जुनैद की गर्दन पर भी है। सुभान अल्लाह। जुनैद की गर्दन पर भी है। जुनैद बगदादी उनसे कितने सौ साल के पहले बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी जब इतने आला पाए के बुजुर्ग है, वो गौसे आजम के मर्तबे को माप रहे हैं, वो गौसे आजम के मर्तबे के बारे में कह रहे हैं कि गौसे आजम के मर्तबे के बारे में ना जानो मगर इतना जान लो, कादरियों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, जितना नाज करोगे कम होगा, इसलिए कि तुम्हें कोई गैरू पीर नहीं दिया गया है। पीरों का पीर अब्दुल कादिर दिया जा रहा है, रोशन ज़मीर दिया जा रहा है, दिलों के हाल को जानने वाला दिया जा रहा है। खुद अब्दुल कादिर ने कहा, मैं हथेली में पूरी दुनिया को देखता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी महफिल में है, कौन किस अंदाज में है हम ऊपर बैठ के नहीं देख पा रहे हैं, मगर बगदाद वाले आका देख रहे हैं, बगदाद वाले मौला देख रहे हैं, बगदाद वाले बड़े पीर देख रहे हैं। अगर यकीन है बड़े पीर देख रहे हैं तो सच्चा वादा करो कि जब तक रहेंगे बड़े पीर का सच्चा गुलाम बन के रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे। हुजूर बड़े पीर की बारगाह है। मैं आपको बता दूं, हुजूर बड़े पीर के दास्तान सुनने वालों, बड़े पीर का मर्तबा देखो अल्लाह की बारगाह में कितना है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह और जरा लहद के बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर का मर्तबा। एक औरत बड़े पीर की बारगाह में आई। हमारी माँ और बहनें यहाँ बैठे हैं। आज हमारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे घरों में और हमारी बस्तियों में भी ये मामला होता है। आओ मैं आपको बता दूं, आए दिन कहा जाता है कि शादी होने के बाद 1 साल के बाद, दूसरे
दूसरे साल गुजर जाए, तीसरे साल गुजर जाए, अगर वो शादी होने वाले के बच्चा ना हो तो उस औरत को न जाने कितने ताने दिए जाते हैं, कितने ताने दिए जाते हैं। औरत को सास भी ताना देती है, ननन भी ताना देती है, जेठान भी ताना देती है, जितने उसके हैं सब ताना देते हैं कि कैसी कलमुई आ गई है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शादी तो मियाँ बीवी दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके करने के बाद बच्चा होने का मामला जो कुदरती मामला रखा गया है कि दोनों के मिलने के बाद ही बच्चा होता है, दोनों के मिलने के बाद ही बच्चा दुनिया में आता है। खाली औरतों को डांटना ये कहाँ का इंसाफ है, खाली औरतों ही को ताना देना ये कहाँ का इंसाफ है। जरा मर्द को भी ताना दे के देख, मर्द का भी जायजा लेके देख। जिस मर्द ने मोबाइल को हाथ में लेके न जाने कितना गंदा गंदा काम करके अपने उस अल्लाह की दी हुई नेमत को जायल कर दिया है, जरा उसका भी हिसाब किताब करके देख, उसके भी डॉक्टरी मामला करके देख। आए दिन ऐसी कितनी शादी हुई है कि 1 महीने के बाद तलाक, 2 महीने के बाद तलाक, 3 महीने के बाद तलाक। उस तलाक देने वाले के मामला को जब टटोला गया, पूछा गया कि आखिर क्या मामला है। लड़कियां तो शादी की है कि एक बड़े घर में शादी की है, लड़का हैंडसम है, लड़का चिकना है, लड़का अच्छी सेहत का मालिक है, लड़के के पास दौलत है, बिल्डिंग का मालिक है, मगर इतना सब होने के बावजूद भी लड़का नौकरी वाला है कि तुम नौकरी वाले के अलावा देते नहीं हो, मगर तुमने इतना जहाज दिया, उसके बाद 1 महीने के बाद तुमने तलाक क्यों ले ली, आखिर वजह क्या है। तो उस लड़की से पूछने के बाद पता चलता है, वो लड़की बताती है, क्या बताएं हजरत, क्या मामला बताया जाए कि लड़का ऐसा निकला कि लड़के के अंदर कुछ नहीं है, ये ऊपर से खाली चिकना है, अंदर से सपाचट है, अंदर से बर्बाद है, यानी बीच में तकिया रख के सोता है। ऐसे आलम में मैं कहना चाहूंगा, मेरी माँ और बहनें जो सास बनी हुई है, जो ननन बनी हुई है, मेरे भाइयों, तुम शादी करने के बाद अगर 1 साल में बच्चा ना हो, दूसरे साल इंतजार करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, तीसरे साल इंतजार करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, इसलिए कि बच्चा होना यह कुदरती मामला है, यह किसी औरत के हाथ में नहीं है, किसी मर्द के हाथ में नहीं है। रब जिसे चाहता है बेटी नवाजता है और रब जिसे चाहता है बेटा नवाजता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ऐसा ही मामला गौसे आजम की बारगाह में आया, सुभान अल्लाह। ऐसा ही मामला गौसे आजम की बारगाह में आया। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक औरत पहुंचती है। औरत पहुंचने के बाद अर्ज करती है, या गौसे आजम अल मदद, दस्तगीर पीरों के पीर रोशन ज़मीर, मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। हुजूर गौसे आजम ने उसका चेहरा देखा, देखने के बाद चेहरे के सारे चेहरे के जोग्राफिया को देखने के बाद, बताओ गौसे आजम ने चेहरा देख के पढ़ लिया होगा या नहीं, बताओ। हमारा ईमान है गौसे आजम ने पढ़ लिया है, मगर फिर भी गौसे आजम ने पूछा, बताओ अम्मी जान कैसे आई हो, बताओ कैसे आई हो। उन्होंने कहा, या गौस अल मदद, मैं आई हूँ इसलिए कि मेरा मामला बड़ा संगीन है, मेरा मामला जरा गंभीर है, मुझ पे करम फरमाइए, मुझ पे मदद फरमाइए। हुजूर बड़े पीर ने कहा, क्या मामला है जरा बता। उस औरत ने कहा, या गौस अल मदद, मेरी शादी को 5 साल हो गए या 6 साल हो गए, या गौस अल मदद, मेरे शौहर ने मुझे धमकी दे दी कि इन साल अगर तेरा बच्चा ना हुआ तो तुझे तलाक दे दूंगा। मेरी सास, मेरी ननन जितनी है, मुझे कलमुई से मुझे ताबीर करती है, आए दिन ताना मारती है, आए दिन गालियां देती है। या गौस मुझ पे करम फरमाइए, मुझ पे करम फरमाइए। मेरे दोस्तों, आप अगर सच्चे कादरी हो तो बताओ, मेरे गौस ने करम किया है या नहीं, बताओ। जरूर करम किया है। आज भी आप गौसे आजम के नाम पे तोशा की मन्नत करो, जिसके घरों में बच्चे नहीं हैं, गौसे आजम के नाम की मन्नत कर लो और अकीदे से आए अब्दुल कादिर के नाम पे कहो, या बड़े पीर, अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं तेरे नाम का तोशा करूंगा, तेरे नाम की फातिहा करूंगा। कसम खुदा की, रज़वी कहता है कि तुम्हारा ये अकीदा अगर सच्चा है, बगदाद वाले आका का करम होगा, तेरे घर में भी रहम ही रहम होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो
توجہ فرمائے. غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ عورت آئی, آنے کے بعد عرض کرنے لگی حضور میرا معاملہ ایسا ہے کہ 5-6 سال ہو گیا مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے, حضور ذرا بچہ کے لیے دعا فرمایا جائے. غوث اعظم پیروں کے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائی, قسم خدا کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, ایسی ہاتھ اٹھے قسم وہ غوث اعظم کا ہاتھ ہے, ہمارا تمہارا ہاتھ نہیں ہے, ہماری زبان میں وہ تاثیر کہاں ہے, مگر غوث اعظم کا ہاتھ اٹھا ہے. آپ ذرا بتاؤ آپ بھی دعا کرتے ہو کہ نہیں, ذرا بتاؤ دعا کرتے ہو کہ نہیں. نماز میں آؤ گے تب نہ دعا کرو گے, آئے پیسے کے بھاؤ میں آئے اپنے امام صاحب کو دے دیے 50 روپے دعا کر دو, اما کبھی اس زبان کو کھول کے دیکھ, اللہ کا کرم دیکھے گا تو یقیناً تو دیکھے گا وہ میرا رب ہے ہمیشہ نوازنا چاہتا ہے, وہ میرا رب ہے ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے. حضور بڑے پیر دستگیر نے ہاتھ اٹھایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار اس عورت جو آئی ہے اس عورت کو تو بیٹا عطا فرما, اس عورت کو بیٹا عطا فرما. اللہ کے اس پیغمبر اللہ کے اس ولی نے دعا کی, اے پروردگار اس عورت کو بیٹا دے, اس عورت کو بیٹا دے. یہ دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں, پھر زبان رکی, پھر ایک بار دعا کیے, پھر زبان رکی, پھر ایک بار دعا کیے, مگر دعا پہ دعا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ سے آواز آئی عبد القادر اس کے لیے دعا نہ کر, اس لیے کہ اس کے حق میں بچہ نہیں ہے, اس کے قسمت میں بچہ نہیں ہے. اب بتاؤ عبد القادر سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کا پیارا ولی ہے, جو اللہ کا چہیتا ولی ہے, وہ عبد القادر ہے. ہر چیز رب سے منوا لیتے ہیں, ہر بات رب سے منوا لیتے ہیں. کس عبد القادر نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا ہے وہ عبد القادر کو رب کہہ رہا ہے اس کے قسمت میں بچہ نہیں ہے, دعا نہ کر, دعا نہ کر, دعا نہ کر. عبد القادر نے پھر دعا کی, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی عبد القادر دعا نہ کر, پھر دعا کی, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی عبد القادر دعا نہ کر. اب غوث اعظم دوبارہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں پروردگار یہ جو بندی اپنے گھر سے چلی ہے تجھے پتا ہے, یہ بندی جو دل میں ارادہ کی ہے تجھے پتا ہے, یہ بندی جو آئی ہے میرے یہاں تجھے پتا ہے. اے پروردگار ذرا بتا اگر یہ بندی کے قسمت میں بچہ نہیں تھا تو جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو اس کے ارادے کو توڑ کے تو اس کے الہام کیوں نہیں کیا کہ تو مت جا عبد القادر کے یہاں, مگر وہ جب گھر سے چلی ہے یہی سوچ کے چلی ہے عبد القادر کے یہاں ہر چیز مل جاتی ہے, عبد القادر سب کو نوازتے ہیں, عبد القادر سب کو عطا کرتے ہیں, میں جا رہی ہوں مجھے بھی بیٹا نواز دیا جائے گا. عبد القادر کے یہاں یہ آئی ہے یہ سچا ارادہ کر کے کہ عبد القادر کے یہاں ہمیں بیٹا مل جائے گا. اے پروردگار اگر اس کے قسمت میں بیٹا نہیں ہے تو مت دے, مگر اے پروردگار اگر تو چاہتا ہے یہ بندی یہاں سے جائے, جانے کے بعد روتے روتے آنکھوں میں آنسو لیتے لیتے جائے, کوئی راستے میں پوچھے کہاں سے آئی ہے, وہ کہے کہ میں عبد القادر کے یہاں سے آئی ہوں, وہ کہے کہ میں عبد القادر کے یہاں سے مایوس ہو کر آئی ہوں, وہ پڑوسی میں کہے کہ مایوس ہو کے آئی ہوں, وہ گھر میں کہے کہ مایوس ہو کے آئی ہوں, علاقے میں کہے کہ مایوس ہو کے آئی ہوں. اللہ کا ولی عبد القادر رب کی بارگاہ سے فریاد کر رہے ہیں, اے پروردگار اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے عبد القادر کے نام پہ لوگ کہے کہ اس کے نام پہ کچھ نہیں ملتا ہے, اس کے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے, اس کے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے, اگر تو چاہتا ہے تیرا عبد القادر رسوا ہو جائے تو بچہ مت دے, تیرا عبد القادر رسوا ہو جائے تو بیٹا مت دے, تیرا عبد القادر رسوا ہو جائے تو کچھ مت دے. قسم خدا کی میرے دیوانوں اگر سچے قادری ہو اب جو جملہ آ رہا ہے اس کو سننے کے بعد یقیناً مچل جاؤ گے. اللہ کے اس ولی عبد القادر نے رب کی بارگاہ میں کہا پروردگار اگر تو چاہتا ہے عبد القادر رسوا ہو تو اس کو بچہ نہ دے. اللہ کی قسم جیسے ہی یہ جملہ اٹھا اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی بتا عبد القادر کتنا بچہ دیا جائے. غوث اعظم نے کہا پروردگار پورے 7 بیٹا عطا کر دے, بیٹا عطا کر دے. بتاؤ میرے دوستو غوث اعظم کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے, غوث اعظم کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا ہے. اس عبد القادر کی دعا نے ہمیں آواز دی. آج بھی تم
सच्चे दिल से अब्दुल कादिर को पुकारोगे तो मिलेगा, अब्दुल कादिर को पुकारोगे तो सब कुछ मिलेगा, मगर ऐसे वैसे को ना मिलेगा, ऐसे वैसे को ना मिलेगा। जो हुजूर गौसे आजम के तरीके पे नहीं है उसको नहीं मिलेगा। अब सच्चे दिल से बताओ कितने लोग तरीके पे है, कितने लोग तरीके पे नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं अभी ईशा की नमाज कौन कौन पढ़ के आए, जरा हाथों को उठा के बोले ये पढ़ के आए हैं। ये बस इतने ही लोग पढ़ के आए हैं। क्या गौसे आजम ईशा की नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या गौसे आजम ईशा की नमाज नहीं पढ़ते थे? जितने लोग हैं बताएं, क्या गौसे आजम फजर की नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या गौसे आजम जोहर की नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या गौसे आजम असर की नमाज नहीं पढ़ते थे? कोई बता सकता है गौसे आजम को दाढ़ी थी या नहीं? कोई बता सकता है थी कि नहीं? बताओ, गौसे आजम को दाढ़ी थी? गौसे आजम पक्के नमाजी थे। अगर आप में जितने लोग कादरी हैं, अब बताओ आप गौसे आजम को राजी कर रहे हो या नाराज कर रहे हो? गौसे आजम तुमसे खुश है या ना खुश है? बताओ मेरे दोस्तों, क्या इस जलसे में आने से गौसे आजम खुश हो जाएंगे? क्या इस जलसे में नाते सुनने से गौसे आजम खुश हो जाएंगे? तुमने जिंदगी भर गौसे आजम को नाराज किया है, तुमने जिंदगी भर गौसे आजम का दिल दुखाया है। अगर अब्दुल कादिर रूठ जाए, बताओ मदीने वाले आका की बरकत से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इसी महफिल पाक में आए हो। गौसे आजम की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है, दस्तगीर की महफिल है, रोशन ज़मीर की महफिल है। इस महफिल में हमारा ईमान है कि हमारे दिलों को भी रोशन बगदाद वाले आका करते हैं, हमारे दिलों की हालात भी बगदाद वाले आका जानते हैं। यहाँ जितने लोग हैं, अगर सुन्नी है, आप अगर जानते हैं कि हम पे नमाज फर्ज है, तो 11 आदमी गौसपा के नाम से आज वादा कर ले कि हम नमाज पढ़ेंगे। कसम खुदा की बगदाद वाले आका का इतना करम होगा, यहाँ जितने उलमा हैं सब दुआ करेंगे, तुम्हें बगदाद की ज़ियारत भी हो जाएगी। जितने लोग हैं वादा कर ले, 11 आदमी कोई है वादा कर ले गौसे आजम के नाम से नमाज पढ़ने का, कोई वादा कर ले। कसम खुदा की नमाज पढ़ने पे वादा नहीं है। अब्दुल कादिर की महफिल में बैठे हो, अब अगर बताओ यहाँ इमाम साहब हैं, इमाम साहब मुसल्ला में जाते हैं, आप क्या कहते हैं? इमाम साहब मेरे घर में बच्ची बीमार है, दुआ कर दे, दुआ कर दे। अगर इमाम साहब दुआ कर दे कि अल्लाह जिन लोगों ने यहाँ पर तकरीर सुन के हाथ नमाज के लिए ना उठाया, अल्लाह ताला सबों के हक में ये काम कर दे, बताओ आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? आप बददुआ नहीं चाहते हैं ना, तो हाथ उठाएं, कोई भी नमाजी के वाहन हो जाए, सुभान अल्लाह एक आदमी उठाए, दूसरा आदमी, जो नमाज पढ़ते हैं वो नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ते वो 11 आदमी वादा कर ले। गौस पाक के नाम से वादा करो, अगर सच्चे गौसे आजम के गुलाम हो, कसम खुदा की कल क़यामत में तुम्हारा चेहरा गौसे आजम के सामने आएगा, कल क़यामत में आएगा। वादा तो कर लो मेरे दोस्तों। एक आदमी ने गौसे आजम के नाम से वादा किया है, मैं दुआ करता हूँ सिद्क़ दिल से, अल्लाह ताला उसे बगदाद की ज़ियारत फरमा दे, उसे बगदाद मुअल्ला की ज़ियारत फरमा दे। उस एक आदमी, एक मेरे चचा के साथ कोई और साथ देने वाला है, यहाँ इतने हैं, सब कहते हैं हमको कादरी हैं, गौसे आजम के नाम से नहीं उठाओगे? सब उठाओ हाथ, तो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। सब उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब उठाओ ना, गौसे आजम की बारगाह के करम नहीं होंगे, सब उठाओ, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठाइए आप, दोनों हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो गौसे आजम का करम होगा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इन लोगों ने अगर वादा सच्चा किया है, इन्हें वफा करने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार, जो एक साहब ने नमाज पढ़ने का वादा किया है, मौला उसे पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, उसके घर में जितनी मुसीबतें हैं दूर कर दे, उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दे, उनके बाल बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके बच्चों के रिज्क में, रोजी में बेपनाह बरकतें अता फरमा। क्योंकि उन्होंने इस नाम पे इसलिए उनको खास तौर पे दुआ दी जा रही है कि उसने वादा नमाज का किया है, उसने वादा नमाज का किया है। आपने वादा नहीं किया है तो जबरन हमने उठाया है, वादा नहीं किए हैं। जो वादा किया अल्लाह ताला उनके लिए दुआ कर दे, और जो वादा नहीं किया उन्हें हिदायत नसीब अता फरमाए। आओ, मैं अपने बोलने सुनने में किसी तरह की कोई खामी हुई है, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पूरा मजमा कहो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात ने